Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. Welcome to the second part of Six Sigma Yellow Belt certification. We again have Afaq Sahab with us, and he will be continuing his lectures. I see a lot of people are coming in, but please make sure next time you guys come in on time so that we can start on time. I think only Sana and couple of others, Moise, were there early. चलो इंशाल्लाह फिर बात होती है. आफाक भाई, it's all up Yes. to you. Just a minute. Give me 1 minute, please. You go ahead, please. Okay. How many people are there? 9. Nice. So we should give 5 minutes. No, they're coming. No, we can continue, sir. Yeah, sure. Sure. They are coming as we speak, so it's good. Now we have 15, 16, 13, 14. Yeah, we have 13. This means we have 11 now. Go ahead. Okay. So last time we discussed about just the introduction of the Six Sigma, and any question regarding any feedback or any question? Okay, I will also request a few of you to please open up your mic and ensure that you are interacting with the Afaq Sahab. It is important कि आप लोगों में से कोई एक आदमी जो है या दो एक या दो लोग जो हैं वो पहले से खोल के रखें अपना माइक. तो who will be the one who will do that? Sana is there, Alicia, Moise, Laiba. Who can do that? Moise is also there. Okay. Go on, guys. We need. So who will be the one who will be interacting? You guys can hear us or not? Hello? They are trying to connect audio, I think. Still not connected. Shanze, can you try to link your audio, connect with the audio? I can't see her. Okay. Moiz Ali, you try to unmute yourself. Okay, let's see how many of you can connect with the video and the audio. It's very important that one of you. Yes, sir. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Okay, Shanze, that's fine. If you are having mic issue, you can stop. And who said salam alaikum? Moiz Ali? Yes, sir. Chalo, sahi hai. Moiz, and couple of others, if you want to join in, please. Okay, Romesa, that's good. Alicia, you good that. So please be interactive. जितना ज़्यादा आप लोग interactive होंगे, उतना ही ज़्यादा समझेंगे और वरना परेशानी रहती है कि आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही बात और फिर वो एक ही बात 5 दफा रिपीट हो जाती है. तो make sure that you are interacting, and if you understand something, if you understand something, then you say it. Okay, so please interact करें और make sure करें कि आपका जो जब सवाल किया जाता है कोई तो उसका जवाब दिया जाए. Do you get it? आपको समझ में आ गई ये वाली बात?
ये Yes, sir. अच्छा, थैंक यू प्लीज। ओके बेट लाइबा, अगर कोई बात तो मेक श्योर। तो मैं कह रहा हूँ फिर इसका मतलब है मोइज आपके, और हु इज द अदर पर्सन? मोइज अली के अलावा कौन है जो कि इंटरेक्ट करेगा? किसका माइक सही चल रहा है? और ये जो जिन जिन के माइक के इश्यूज हो रहे हैं, प्लीज गो अहेड एंड कॉल द जो सर्विसेज हैं आपकी कंप्यूटर वालों की। दीज सर आर मैं ऑल जरूर कवर्ड। इंटरेक्ट करता। सर मैं जरूर इंटरेक्ट करता, लेकिन मेरे घर पे दावत है तो थोड़ा लोग थोड़ा ज्यादा हैं, तो मैं अटेंड कर रहा हूँ फिलहाल। कौन बात कर रहा है? नाम बताया करो बेटा पहले। सर दानियाल। हाँ, सर दानियाल। दानियाल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या चलो खाना ठीक है, बना कोई है तुम्हारे? नहीं। सर जी, मसला है कि घर में दावत है, अब मैं पूछ रहा हूँ थोड़ा खाने में क्या बना है? ड्यूटी रख। अच्छा सर, वो 4-5 डिशेस हैं तो बता दूं। हलीम, बारबेक्यू है, और बाकी कढ़ाई वगैरह है। क्या बात है भाई। चलो भाई ठीक है। चलो ठीक है, तो अरे लेट्स कौन फिर या उमैर मोइस प्लीज आप रहिएगा जरा ऑनलाइन, ठीक है ना? लेट्स स्टार्ट प्लीज। सॉरी ओके सॉरी सर, सर। ओके सर। no, it's okay. Okay, so the basic purpose of this whole training is like कि आप लोगों को conceptual idea हो कि what is we are talking about, why we are talking about Six Sigma, what is the need of Six Sigma. Okay, so in the last uh, in the previous we explained a little bit. I hope everybody understand the slides, and no question asked. I think so I should take it as we should move forward. Okay, my voice is okay. Yes, sir. Clear. Yes sir, it's clear. Okay, Yes, sir. I'll good. Thank you. So I will go through quickly through about the slides which we had covered in the last session. We talk about the defects and defective. What is defective and defects? And we talk about the data, and I will go in details a little bit. Okay, so there are two kinds of data. One is like variable, where you can measure the things. Okay, and like suppose we are talking about length, you can measure. Okay, weight, we can measure. So the things which we can measure are the variable data. Okay, where the data is varies. Okay, and uh, attribute means assign suppose there is a like a hole in one of the place, like one of the plate or one of the things, there is a hole. So we have go and no go gauge. So the gauge can go or no go. So this is like attribute data. We are not measuring. We are just telling, okay, this is attribute data because it doesn't measure. Like suppose you have a red color. You have red color. You have this is a standard red color. If there is a like light red color, then you are going to tell, okay, this is pass, this is not pass, this is pass, this is not pass. So this kind of data is like uh, attribute data. Okay, so continuous we talk about the variable data versus attribute data. Variable where we can measure, like length, weight, and height, or anything else, or any dimension where we can measure. Okay, and where we cannot measure, we can have a check according to standard. Like suppose there is a hole, we have a pin which goes and not go. So go and no go is the pin which establish the hole size is okay or not. Or the suppose we have a pen, we are making, as previous example I mentioned about the a factory is manufacturing shirts. So a shirt required the red color. So you have a standard panel. Okay, I need this kind of red color.
So if it matches, then we are going to tell, okay, this is okay. If it doesn't match, so we are going to tell, okay, not okay. So okay, not okay is here we are not measuring anything. We are just, according to standard, we are checking the product, okay? So this is go and no go wage, okay? And this is attribute data. So there are two variable data and attribute data, okay? Understand? Yes, sir. Okay, Sir. go ahead. Okay, so variable data two category हो सकती हैं उसकी. एक होता है divided in small increments like time, distance, weight. Okay. दूसरा is it is like continuous. It is known as continuous data. It may वेरिएबल को टू सेक्शन में डिवाइड करते हैं. एक कंटिन्यूस होता है, एक डिस्क्रीट होता है. कंटिन्यूस क्या होता है? which is divided in small increments like time, distance, weight, and count. The count is limited to the number that may not be divided into small increment. Like suppose you are telling number of people in class over 6 feet tall. You cannot tell. You have like have to have 12, 11, or you cannot have 12.11 or 3.44, or but where you measured, like suppose you measure the weight, you can say 2.5 pound, okay? You can say 1.5 pound. But when you measure the age, you are not going to tell it is like number of children in the family. You cannot say 1.5. You cannot say 1.2. You have to have numbers. Like, okay, this is like, I have 5 family members. I have 6 family members. You cannot 6 or 5.2. This is count where you count. Okay. So continuous, which has small increment, like weight को हम increment कर सकते हैं. Like weight is 1.5, 2.5. Distance को हम कर सकते हैं. Distance is 1.5 mile, 2.5 mile, 3.5 mile. Time को भी 0.5 hours, 6.5 hours. But as far as age, अगर हम कहते हैं I have like I have number where the number is there. So we are going to tell this kind of data is discrete, where we cannot subdivide it into small increments. It's divided into small increments where we use the points, where you use the like 2.5, 3.5, 5.5, 10.5. So this data is discrete. So there is two. We talk about the one is variable data, one is attribute data, and variable को दो हिस्सों में divide किया हमने. एक continuous है और दूसरा discrete है. Understand? Understand? Yes, sir. Yes, sir. Got it. Yes, Okay. sir. Got it. Thanks. Now we should talk about like Six Sigma की जरूरत क्यों पड़ी? Why we need Six Sigma? एक approach है to operate the system. We talk about it is not only quality. Six Sigma में everybody is involved. Okay. Main function क्या है? जो भी product देखें, जो भी product provide कर रहे हैं, it should meet this customer satisfaction. Suppose, as again, I will give you example like making shirts. So my requirement, if you are telling that I have to give you the shirt like dark red, so I want dark red. I don't want dull red. So customer expectation को हम satisfy कर रहे हैं. ठीक है? Customer expectation is the most important for the company. Like Nike.
branded name. Nike shoes is a branded name. Why it is famous? Why it is well known? Why everybody want to buy Nike shoes? Because they maintain the standard of the quality and customer expectations. So always we have to, हमारा target क्या है? Always we have to maintain the integrity and maintain whatever customer required, whatever customer expectation is the key to success. As I gave you the example of Nike. Why everybody want Nike shoes? Because they maintain the standard, they maintain the quality, they maintain the productivity, they maintain the customer expectations. इसी तरह जिस फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं, हर कंपनी चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, नॉन फार्मास्यूटिकल हो, स्टील मिल हो या एनी प्रोडक्शन हो, एनी प्रोडक्शन का क्या है, आउट गोल क्या है उनका? उनका गोल ये है, पर्पस क्या है कि कस्टमर सेटिस्फाई, customer satisfaction, customer requirement. What customer expect, you have to meet the customer expectation. Is the key. Okay, understand? Okay, so like these are the some steps which I am going to explain you very like I try to explain like as a layman. I want to explain so everybody understand. सबसे पहले जब हम कोई प्रोडक्ट बनाने जाते हैं, हम उसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं कि सिलेक्ट करते हैं क्या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है. से Nike की एग्जांपल अगेन. So if he is making shoes for gymnastics, so he has a specification कि रबर सोल मेरा इतना थिकनेस होना चाहिए, कलर ये होना चाहिए, और सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वो सिलेक्ट जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बाद जो उस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफाइन करें आपको, ये मेरे स्टैंडर्ड है. नाइकी ने डिफाइन कर दिया कि मैं जिम्नास्टिक्स के या सॉकर के या अनदर फील्ड या टेनिस के शूज जो बनाने हैं मुझे, जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगी. स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया उन्होंने कि मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए मुझे, मेरा गोल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं ना? कैरेक्टरिस्टिक्स मींस क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है? Say I'm making, suppose I'm making shirt. So अगर मैं रेड कलर बना रहा हूँ या I'm making other colors, so I have to define the color specification. रेड कलर का ये पैनल होगा, ये स्टैंडर्ड पैनल होगा, ग्रीन का ये होगा, और बटन इस टाइप के होंगे. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी. इसी तरह हर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है. फार्मास्यूटिकल फर्म अपनी के मेरी उसमें एस्प्रिन की क्वांटिटी इतनी होगी, दूसरी मेडिसिन की क्वांटिटी इतनी होगी, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वो डिफाइन कर देता है कि आउटपुट टू कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे चाहिए क्या, व्हाट आई वांट आउट ऑफ प्रोसेस. प्रोसेस है लेकिन प्रोसेस का अल्टीमेट गोल क्या है, क्या चाहिए मुझे, व्हाट आई वांट, वो डिफाइन हो गया. उसके बाद फिर वो डिफाइन करेगा अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. जैसे मैंने आपको बात की कि जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या हैं उनके, अगर फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ नाइकी की एग्जांपल अगेन लेता हूँ मैं. नाइकी में अगर मैं लेस है, उसकी लेस की मेरी लेंथ इतनी होगी, अंदर जो पैडिंग होगी उसकी थिकनेस इतनी होगी. सो जो पैडिंग की परफॉर्मेंस है, हर चीज की वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाएगा. क्यों? ताकि वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक उसको मिले.
स्टैंडर्ड बनाएगा तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी। ठीक है ना? So select output characteristics, then define performance standard, what you want. What type of laces I have in my shoes? What color of laces I have? What is padding inside? What is outside padding? So this is my performance standards मैं बनाऊंगा उसके कि जहाँ जहाँ लेस बन रही है उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, जहाँ पैडिंग डल रही है उसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। So ये सारी चीजें वो डिफाइन करेगा, ठीक है। So फिर उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, वो वैलिडेट मेजरमेंट सिस्टम के वो मेजरमेंट सिस्टम उसका सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। कि भाई मुझे थिकनेस चाहिए पैडिंग की सपोज 1 इंच, तो अब मैं कैसे कंफर्म करूंगा कि 1 इंच ही मुझे मिल रहा है, पैडिंग मिल रही है। तो मैं उसका मेजरमेंट सिस्टम जो होगा उसको वैलिडेट करूंगा कि मेरा मेजरमेंट सिस्टम सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को मीट कर सकूं, ताकि मैं आपको अचीव कर सकूं। हर चीज एक दूसरे के साथ लिंक होती जा रही है। देखिए हमने सिलेक्ट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की, डिफाइन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड किया, फिर अपना सिस्टम मेजरमेंट को वैलिडेट किया। क्यों वैलिडेट किया? ताकि मेरा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को मीट करूं, ताकि मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट करूं। ये 3 पॉइंट जो मैं समझाने की आई एम ट्राइंग टू गेट यू गाइस अंडरस्टैंड, लाइक व्हाई आई हैव टू हैव, कहाँ से कहाँ, वेयर आई स्टार्ट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, देन आई डिफाइन माय परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, देन आई वैलिडेट माय मेजरमेंट सिस्टम कि मेरा मेजरमेंट सिस्टम सही है या नहीं सही है। देन फोर्थ कि मेरा प्रोसेस कैपेबल है या नहीं है। प्रोसेस कैपेबिलिटी आई विल डिफाइन, हम फर्दर डिटेल में जाएंगे तो आई विल डिफाइन यू, बट लाइक प्रोसेस कैपेबल है, वो प्रोसेस वो बना सकता है या नहीं। वो अगर मैं अपने शूज की लेसेस की लेंथ मुझे 5 इंच चाहिए, 5 इंच चाहिए, तो 5 इंच वो प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं, वो कैपेबल है या नहीं। जो एक दफा 4 इंच बनाता है, दूसरी दफा 4.5 इंच, 4.5 इंच बनाता है, तीसरी दफा 6 इंच बनाता है। हाउ माई प्रोसेस इज कैपेबल एंड कंसिस्टेंट। My process should be capable to produce according to the requirement. This is like whether it is capable or not. आपने एक मशीन ले ली, वो पीसेस को काट रही है, एक दफा वो जल्दी काट देती है, लेंथ कम हो जाती है, एक दफा वो देर से काटती है तो लेंथ फ्लो कर रहा है, उसका लेसेस फ्लो कर रही हैं, एक दफा कटिंग में वेरिएशन है, तो आपका प्रोसेस कैपेबल नहीं हुआ। इसी तरह आप शर्ट्स बना रहे हैं, आप जहाँ कलर डिप कर रहे हैं किसी टैंक में, उसको कलरिंग करने के लिए देखा होगा आप, अमूमन छोटी सी शॉप्स हैं जहाँ वो कलर्स करते हैं, तो उसमें उसकी कलर को वो ताकि हर दफा वही कलर मिले, प्रोसेस को कैपेबल बनाते हैं ताकि प्रोसेस कैपेबल हो वो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। तो बात हमने क्या की थी, सिलेक्ट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइन परफॉर्मेंस, वैलिडेट measurement system, establish baseline process capability. What is my baseline capability? Process capability हम आगे define करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं general, I am trying to give you general concept. I'm not going stats and this and that. I'm not going mathematical objectives now, but like I'm just trying to explain you what is, so that you can understand the concept of this yellow belt. Whole training is understanding. First understand. If you are not understanding the basic concept, then you always lost. I don't want you people just get the idea. Okay.
प्रोसेस कैपेबिलिटी के बाद देन डिफाइंड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। आप क्या चाहते हैं, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? कैपेबिलिटी तो आपने डिफाइन कर दी, लेकिन ऑब्जेक्टिव जैसे रेड कलर मैंने बताया था आपको, शर्ट का रेड कलर या ग्रीन कलर जो भी है, आपने एक पैनल बनाया हुआ है कि मुझे रेड कलर की शर्ट चाहिए जिसके बटन भी सही, लेंथ भी सही हो, जिसकी कॉलर साइज भी सही हो। इसी तरह अगर नाइकी बना रहा है तो उसका परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव हर लाइन पे, हर ऑपरेशन में उसके परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर देते हैं वो, कि मुझे यहाँ से ये चीज चाहिए। I think I am clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then चले नेक्स्ट स्टेप पे आइए। अब नेक्स्ट स्टेप, व्हेन वी गो नेक्स्ट स्टेप, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे एक प्रोसेस चल रहा है, वहां वेरिएशन कहाँ से आ सकती है। सपोज यू आर कलरिंग, अगेन कलरिंग द शर्ट्स, सो उसमें वेरिएशन कहाँ से आ सकती है। आपने जो कलर मैचिंग, कलर मिक्सिंग सही नहीं की, आपने पानी का टेम्परेचर सही नहीं किया जिसमें डिप कर रहे हैं, जिसमें कलर डालता है, आपने उसमें टाइम जितना लगाना था वो नहीं लगाया। ये मैंने छोटी सी एग्जांपल दी, कितनी वेरिएशन आ गई। और आपने रेन हो रही है वहां पे, आप उसमें डिप कर रहे हैं एटमॉस्फेयर, आपने उसको पहले क्लीन नहीं किया, पहले ग्रीन कलर कर रहे थे, अब उसमें दोबारा रेड कलर करना शुरू हो गया, तो वो मिक्स हो गया। आपका कलर की क्वालिटी सही नहीं है, कलर जो आपने डाला है। आपने कलर जो शर्ट पे या किसी चीज पे किया था वो पूरी तरह डिप नहीं हुआ। तो 7-8 वेरिएशन तो मैंने बता दी कहाँ से वेरिएशन आ सकती है। तो हर प्रोसेस की अपनी वेरिएशन के सोर्सेज होते हैं, वेरिएशन के सोर्सेज होते हैं जो वेरिएशन को क्रिएट करते हैं। सो किसी भी प्रोसेस के लिए फिर हमें, जब हमने परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव अपने डिफाइन कर दिए, फिर हमें उसको वेरिएशन के सोर्सेज तलाश करने होंगे कि वेरिएशन कहाँ से आ रही है। व्हाट आर द वेरिएशन सोर्सेज, कहाँ से वेरिएशन आ सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा स्क्रीन पोटेंशियल कॉजेज। स्क्रीन आउट करें क्या क्या पोटेंशियल कॉजेज, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं वेरिएशन के लिए। कॉजेज क्या हो गए कि कस्टमर ने आपके जो पेंट्स शर्ट पे जो आप कलर कर रहे हैं, वो कलर किसी ने सप्लाई ने सही नहीं प्रोवाइड किया आपको, कलर बहुत पुराना था। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कलर बहुत पुराना था, कलर में कोई डस्ट या मिक्स हो गई, ये कॉजेज हैं। उसको आप स्क्रीन आउट करें, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। जैसे सबसे बड़ा अच्छा आइडिया होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, की एक प्रोसेस है, आप उसको बैठ के सोचें और लोगों से डिस्कस करें कि भाई क्या क्या स्क्रीन पोटेंशियल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कवर वेरिएबल रिलेशनशिप, यानी जितने भी वेरिएबल्स हैं आप उस प्रोसेस के, उसके आपस में रिलेशनशिप क्या है।
जैसे मैंने एग्जांपल दी, कलर, आप कलर में वेरिएबल ये करता है कि कलर जो है आपका सही नहीं था, उसमें कोई ग्रीन कलर किसी ने मिक्स कर दिया या कुछ और, या ओल्ड हो गया या जो भी था। और दूसरा जो है, दूसरा वेरिएबल क्या होगा, दूसरा वेरिएबल भी होगा वहां पे। तो हर वेरिएबल में रिलेशनशिप होती है, तो उसमें रिलेशनशिप है या नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा। Next is very important, establish operating tolerances, implement improvements. यानी आपको उसकी ऑपरेटिंग टॉलरेंसेस आपको इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोसेस है, आप उसमें आप एक लेंथ काट रहे हैं, किसी मटेरियल की लेंथ को शेयर कर रहे हैं आप, तो उसमें आपने फिक्स किया कि मेरी लेंथ होनी चाहिए तकरीबन लाइक 150 मिलीमीटर। सो आपने कहा कि अगर प्लस 10 मिलीमीटर और माइनस 10 मिलीमीटर हो जाएगी तो एक्सेप्ट कर लूंगा मैं, अगर इससे ज्यादा होगी तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कस्टमर कह रहा है आपको, फर्ज कीजिए। तो यहाँ आपने टॉलरेंस इस्टेब्लिश कर दी कि प्लस माइनस इतना मैं जा सकता हूँ। ऐसे ही आप रेड कलर शर्ट आपको प्रोड्यूस करनी है, तो आप उसमें कहेंगे कि थोड़ा सा डेविएशन है, अगर थोड़ा सा इतना डेविएशन एक्सेप्टेबल है, वो आपको स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे उसमें, उस केस में। होल साइज है, किसी चीज का होल आप बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसमें होल का साइज, उसका होल का डायामीटर है सपोज 100 मिलीमीटर। सो आप कहेंगे 100 प्लस माइनस 5 मिलीमीटर, प्लस माइनस 10 मिलीमीटर, प्लस साइड पे और 10 माइनस साइड पे मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो उसको आपको ऑपरेटिंग टॉलरेंस, क्योंकि जब आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं 100% आप अकॉर्डिंग टू स्पेक्स, इट्स वेरी टफ। सो आपको टॉलरेंस इसके इतना अगर मैं डेविएट करूंगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा, इससे ज्यादा होगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। What is somebody is writing something, or what is admit? Somebody is writing some question. What is happening? Hello? Hello? जी सर। Somebody is writing something, some question? नहीं, कोई नहीं चैट के अच्छा, ऊपर। ठीक है, on the screen or not? okay, okay. After this, next point is validate measurement system. जो आप देखिए, नंबर 4 पॉइंट इस्टेब्लिश वैलिडेट मेजरमेंट सिस्टम है, ठीक है, वैलिडेट है। यहाँ भी 10th में भी वो ये कह रहा है कि आपने सब करने के बाद आपको दोबारा अपना वैलिडेट करना पड़ेगा। जब आप सारी चीजें ऑपरेटिंग टॉलरेंस सब कुछ करेंगे, आपको वैलिडेट करना पड़ेगा सिस्टम मेजर कर रहा है वो टॉलरेंस के साथ और नो। प्रोसेस कैपेबिलिटी हमने बता दी थी, इस्टेब्लिश करेंगे, फिर डिटरमाइन करेंगे फाइनल प्रोसेस कैपेबिलिटी, वहां ऊपर इस्टेब्लिश था। और यहाँ हम क्या करें, डिटरमाइन क्या प्रोसेस, मेरा प्रोसेस में अगर एक लेंथ मेजर कर रहा हूं, वो मुझे चाहिए 100 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर, और मेरा प्रोसेस इतना कैपेबल है यानी कि जो वो लेंथ को इस टॉलरेंस के साथ प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं। Same thing, if I'm coloring the shirt or I want dark red shirt,
क्या मेरा प्रोसेस कैपेबल है कि वो रेड कलर जो मैं कस्टमर रिक्वायर्ड करता है उसको प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं, उसको डिटरमाइन करेंगे फाइनल प्रोसेस कैपेबिलिटी। नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंट प्रोसेस कंट्रोल। आप हर जगह प्रोसेस कंट्रोल इंप्लीमेंट करेंगे ताकि मुझे वेरिएशन ना आए कहीं भी और मेरा प्रोसेस कैपेबल हो। These are the factors very important for any of the process in the world. You name it. You give me the example of the process, I will explain you. Okay, यहाँ ये कंट्रोल करना चाहिए, यहाँ ये कंट्रोल करना चाहिए, इस तरह करेंगे। तो any process, whether it is pharmaceutical, whether it is anything manufacturing, steel making, heat treatment, or IT, or anything. Electronics manufacturing, yes, everywhere. This is the basic concept. Okay? Agreed? Agreed. हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सिक्स सिग्मा इज नॉट एक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम नहीं है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है ताकि हम अपने सिस्टम में वेरिएशन को रिड्यूस कर सकें, क्वालिटी को इंक्रीज कर सकें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ा सकें और मार्केट शेयर बढ़ा सकें। Nike example, they have a good quality, they control the variations, they meet the customer requirement satisfaction, and they deliver in time, and they have a good market share. शूज की मार्केट में, स्पोर्ट्स शूज की मार्केट में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर नाइकी का है। मार्केट शेयर, किसी ने मुझसे सवाल किया था, मार्केट शेयर का कंसेप्ट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल टोटल रिक्वायरमेंट इन द कंट्री सपोज 100 शूज है, कराची में रिक्वायरमेंट नाइकी की सपोज 100 शूज है, टोटल स्पोर्ट शूज की रिक्वायरमेंट है और 60 शूज जो है नाइकी बेच पाता है, तो इसका मतलब 60% उसकी मार्केट शेयर हो गया। टोटल रिक्वायरमेंट का कितना परसेंट वो शेयर करता है मार्केट। So आप again the example are quality, they are maintaining quality, there is no variation। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मसाला लें दूसरी टाइम लें तो उसमें वेरिएशन होगी, नहीं। कस्टमर इज सेटिस्फाइड। हाउ दे अचीव, जो मैंने पहले आई टॉक टू यू गाइस लाइक ओके स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मैंने आपको बताया था, वो अप्रोच दे यूज इट एंड दे आर सक्सेसफुल। सो गोल क्या है, व्हाट इज द गोल? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। Its whole approach is not a improvement program. It's instead of business philosophy.
जो आप employs a step by step approach to reduce variation, increase quality, customer satisfaction, in time market share. भाई इन टाइम मार्केट शेयर फॉर एग्जांपल आप किसी को आप जो डिमांड है, डिमांड एस्टेब्लिश करता है ना, हर फॉर एग्जांपल एनी हर मैन्युफैक्चरर फर्ज कीजिए शान मसाला आज एक्सपोर्ट करता है हर जगह, ये सपोज मलेशिया में एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, कल उसके पास मलेशिया के ऑर्डर आ जाते हैं, तो वो अपना डेफिनेटली अपने इन टाइम डिलीवरी को मेंटेन करेगा ताकि वो मार्केट शेयर उसका मेंटेन रहे। ओके, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आया सिक्स सिग्मा का? जी सर बिल्कुल। तो ये होल ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी, इट्स नॉट 1% और 2% और 3%, इट्स होल। जिसमें देखे ना जो मैंने पहले बात की थी कि इसमें होल टीम इज वर्किंग। टीम एफर्ट है, इज नॉट, क्योंकि सिर्फ अगर आप क्वालिटी की जिम्मेदारी नहीं, क्वालिटी नहीं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो जहाँ प्रोडक्शन हो रही है, everybody is responsible. Everybody in the organization is responsible to achieve the customer satisfaction. How many people are attending now? 25 sir, 26. excluding us. Okay, okay. पिछली दफा से कम हो गए थोड़े आफाक से। साहब, ये आपने ये लास्ट वीक भी कवर किया था ये वाला पोर्शन? नहीं नहीं, ये नहीं किया था। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं वो जो पिछली स्लाइड्स, जो मैंने पिछली वाली स्लाइड थी, उसके बेसिस पे आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। इट्स लाइक एक और सवाल आया है, मार्केट शेयर हाईलाइट कर दिया जाए क्या? रईस, कैन यू रीड the chat please? I can't read the Roman Urdu. सर वो कह रहा है कि मार्केट शेयर हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट कर दीजिए, व्हाट डज इट मीन? मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए या नीड मोर एक्सप्लेनेशन? उसका मतलब यही है कि आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट। मार्केट शेयर अस्सलाम ये वालेकुम है। सर। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं ये कह रहा था जी, सर मैं ये कह रहा था कि मार्केट शेयर मैं शायद समझ नहीं पाया। ये हम इस तरह से कहते हैं ना, किसी भी कंपनी ने अगर किसी एक जगह के ऊपर, किसी एक ग्राउंड के ऊपर अगर कोई चीज मतलब मैंने ली भी है, तो 50% वो लोकल पीपल को ऑफर करते हैं कि वो इन्वेस्ट करें उनकी कंपनी के अंदर। ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ आता है मतलब मार्केट शेयर के अंदर। Market share is very simple. Like I will give you the example of Exide battery again. Like Exide total requirement वो ले लेते हैं, पूरे मुल्क की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना? पूरे मुल्क की रिक्वायरमेंट सपोज आपको लगा लें कि 10,000 बैटरीज, ऑटोमेटिक बैटरीज की बात कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक बैटरी की रिक्वायरमेंट है पर मंथ, ठीक है? 10,000 में से जब वो एनालाइज करते हैं, ये डेटा पे बेस्ड करता है कि वो उनकी बैटरीज से 6,000 एक्साइड की सेल होती हैं और 4,000, टोटल मैंने 10,000 कहा था शायद, 6,000 सेल होती हैं एक्साइड की और 4,000 सेल होती हैं एजीएस की सपोज। तो ये बेस्ड ऑन हिस्ट्री वो असर्टेन करते हैं कि हमेशा हम तकरीबन 6,000 बैटरीज पर मंथ सप्लाई कर रहे हैं, हमारी बिक जाती हैं और 4,000 एजीएस की बिकती हैं। तो हमारा मार्केट, इनका मार्केट, एक्साइड का मार्केट शेयर हो गया 60% और
AGS का हो गया 40%। समझ आई बात? जी सर, ये पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना? तो सोहेल साहब, एक्चुअली आई वांटेड जो प्रीवियस स्लाइड थी, जो अप्रोच के स्टेप्स थे, उसके बाद मैं थोड़ा सा सिक्स सिग्मा की ये स्लाइड में दोबारा रिपीट किया था, इसी वजह से, ताकि वो जो हमने पिछली स्लाइड थी उसमें स्टेप्स थे, उसकी वजह से थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ओके, कोई रिपीटेशन तो नहीं है? अगर आप लोग समझ रहे रिपीटेशन, सिर्फ ये स्लाइड रिपीट, और कोई रिपीटेशन नहीं। Same thing we are talking about. Six Sigma is a problem process, and the mindset significantly improve the customer satisfaction. ये बात हमने पहले भी की थी। से is like बेस क्या है? सारा बेस ये है कि कस्टमर जो है आपका वो सेटिस्फाई होना चाहिए, क्वालिटी, डिलीवरी एंड एवरीथिंग। ओके, वी विल एक्सप्लेन यू more about this when you go. This is the about the customer requirement. Okay, customer requirement हमने पहले भी आपसे बात की थी। customer requirement क्या है? reduce variability and customer satisfaction, lower the waste, lower the cost, high revenue, high customer satisfaction, higher net income. ये concept है ना? customer requirement आप meet करेंगे, reduce variability and defects. Say अगर if somebody is buying product from you defect free, so and revenue and waste and cost, higher income. So customer requirement को meet करेंगे तो आप और increase करेगी, और profitability कब increase करेगी? जबकि आपकी customer satisfaction high हो, revenue आप generate कर रहे हो, waste कम हो, cost lower हो, variability कम हो, defects कम हो, तो net income आपकी high होगी। This is the whole concept. Customer is always the prime important. अगर आप मीट करते हैं, दिस इज प्राइम इंपॉर्टेंट। कस्टमर क्या चाहता है? बेस्ट क्वालिटी, लो प्राइस। दोनों में ऑप्टिमाइज करता है ना कस्टमर। sometime they pay more. Like if you compare Nike shoes versus other shoes, okay, definitely price, customer is satisfied. Reliability factor is high. ओवरऑल प्रोसेस सिक्स सिग्मा का कंसेप्ट क्या है? हमारा कंसेप्ट क्या है? हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन, I'm buying something, I don't want to see the defects after a couple of days. If I'm buying a shoe out of Nike, I don't want to see any defects. If I like size of 8, I don't want 8.5. Understand? Any question? Yes, no? No, sir. Sigma is a Greek alphabet.
is a unit of measure, metric, it what benchmark, what benchmark? Measure of variation. Where is the variation? Measure of quality, measure of process capability, measure of performance. सिग्मा की एक डेफिनेशन नहीं, ये कंप्लीट डेफिनेशन है कि इट्स मेजर होल सिस्टम. It measure quality, it measure variation, it measure process capability, it measure performance, overall performance. एक सिंगल डेफिनेशन नहीं. सिग्मा इज होल सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है. बेंचमार्क तो ये है ना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कस्टमर सेटिस्फैक्शन कब होगी? जब हम मेजर वेरिएशन को मेजर कर सकेंगे, मेजर क्वालिटी को मेजर कर सकेंगे, प्रोसेस कैपेबिलिटी को मेजर कर सकेंगे, परफॉर्मेंस को मेजर कर सकेंगे, और आउटपुट हमारा कस्टमर. दिस इज सिग्मा. अभी तक हम सिक्स सिग्मा की बात नहीं करें, अभी सिग्मा की बात करें. सिक्स सिग्मा आगे जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन अभी सिर्फ सिग्मा की बात करें. बेनिफिट्स क्या है? Enable success in the world into competition and declining margins. Definitely. Again, Nike example. World में successful like Amazon. And ensure the quality necessary to satisfy the increasing demand of the customer. जो customer की demand increase होती जा रही है, जैसे for example हम आप देख लें कि टाइम के साथ नाइकी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुई ना, डिमांड इंक्रीज होती गई, लेकिन वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करते जा रहे हैं. Provides the means to become the best in the world. Yeah, they are best. And establish a standard language and approach across the all functional lines of the business. And they established language means they established what we want out of the company. Everybody in the company knows what we need to know. We need to know to control the variation so that we can produce the quality product and to meet the customer requirement. They develop employees with comprehensive problem solving skill. The employees जो हैं वहाँ, Nike की example again, all the employees, whatever employees are working, they are trained to solve the problem. If they are trained to solve the problem, then they satisfy the customer needs. They increase the profitability. हर प्रोसेस में एक इनपुट है और आउटपुट है. शर्ट पेंट कर रहे हैं, उसके इनपुट, शर्ट कलर कर रहे हैं, सॉरी पेंट कलर कर रहे हैं. सो आप फैब्रिक पे कलर कर रहे हैं, आप एक्स उसके इनपुट्स हैं. इनपुट्स मींस उसकी सारी इनपुट्स, जैसे मैंने आपको बताया था, उसका कलर है, उसका उसके एटमॉस्फेयर है, उसके और पिगमेंट्स अगर हैं वो है, और टाइम एंड टेम्परेचर है, कितना टाइम रखना है, कितना टेम्परेचर रखना है, कितनी देर रखना है उसको डिप किए हुए. ये सारे इनपुट हैं. आउटपुट क्या मतलब वाई क्या है? वाई क्या है?
final shirt colored as I required. Same thing, Shan Masala. They are taking lot of ingredient, mixing bins होंगे, उनके mixing machines होंगी, क्वालिटी चेक्स होंगे, फिर उसके बाद वो पैकिंग होने के बाद फाइनल जो है वो एक पर्टिकुलर मसाला मिलता है, वो आउटपुट है, वो वाई। और वाई किस पे डिपेंड कर रहा है? इनपुट पे। वाई इज इक्वल टू द एफ एक्स। एफ एक्स क्यों? क्योंकि कई हैं वो, जैसे मैंने बताया था F1, F2, FX2, FX3, FX3, इनपुट कई होंगे ना, आउटपुट एक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है? इनपुट पे। और इनपुट इंडिपेंडेंट क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल आपने कलर पिगमेंट्स यूज कर रहे हैं कलर करने के लिए, तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो उसका इफेक्ट बाद में आएगा, जब करने के बाद तो वो आउटपुट होगा। इनपुट में ही हम कॉजेस कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल करते हैं, कॉजेस ऑफ वेरिएशन कंट्रोल करते हैं, सारी चीजें इनपुट में कंट्रोल करते हैं। आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट पे, इफेक्ट डिपेंड करता है इनपुट पे। So y is our process output and x is process input. Y depend on x. Control the axis x to guarantee good ys. सारे इनपुट को कंट्रोल करेंगे आप तो आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। Any process, input, concentrate input, eliminate the causes of variation, control the process, have a good process capability. These are all inputs जो हमें ultimate output देंगे। आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट पे। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Any 2 minutes, 3 minutes break you want or no? 5 minutes break or anything? No, sir. You're okay? Yes, sir. We are okay. Is सर इस दफा Break. बहुत सिंपल तरीके से आप समझा रहे हैं, जबरदस्त है, समझ में आ रही है। मैं आई एम ट्राइंग, देखिए थोड़ा सा टाइम जरूर है, लेकिन अगर जब समझ में नहीं आएगा तो बेकार है, फिर सब कंसेप्ट समझ आना चाहिए, इसलिए आई एम ट्राइंग टू। सर वेरी ओके गुड। नहीं 5 मिनट्स ब्रेक ले सकते हैं हम, मैं भी अपने चाय का कप फ्रेश कर लूंगा। ठीक है सर, फिर ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट। 5 मिनट्स। थैंक्स। सोहेल साहब आप हैं लाइन पे? थैंक यू सर। नहीं सोहेल, ओके 5 मिनट्स।
We are back. Is okay? Okay to proceed? Hello? Yes, sir. Okay. So अब तक understand कर रहे हैं? Everybody understanding? कि concept clear होना चाहिए, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये तो थोड़ा सा जो ये मैं आके when we go further down the road, I will explain you how to make this curve. So ये जो आपको कर्व नजर आ रहा है, इसके एक है लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, यानी हर चीज की स्पेसिफिकेशन हमने डिफाइन कर दी कि भाई ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अगेन वो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग लूं तो उसमें मैंने डिफाइन कर दिया है कि मुझे ब्राइट रेड कलर की शर्ट चाहिए, डल नहीं चाहिए। तो मेरी अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट एक हो गई, उसमें मैंने मार्जिन रख लिया कि इस ग्रेड का कलर चाहिए मुझे, इससे आगे एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो मेरी अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट होगी। इस तरह लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट होगी कुछ के डार्क और वेरी हल्का, नहीं हो। हर चीज की अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, हर चीज की लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट। सपोज आप लेंथ बना रहे हैं, किसी चीज की लेंथ काट रहे हैं, तो उसमें वुड का एक पीस है, उसकी लेंथ काट रहे हैं तकरीबन 100 तकरीबन 7 इंचेस लेंथ चाहिए मुझे, लेकिन अगर मुझे 7.5 मिलेगी तो एक्सेप्टेबल होगी। इसी तरह नीचे अगर 7 से 1 इंच ऊपर होगी तो मैं एक्सेप्टेबल होगी, 7 से 1 इंच नीचे होगी तो वो भी एक्सेप्टेबल होगी। तो लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या होगी उसकी, अगर 7 चाहिए तो लोअर 7 - 1 6 हो गई, 7 + 1 8 हो गई, अपर लिमिट हो गई उसकी 8, लो 6। सो वो कहता है 6 मुझे एक्सेप्टेबल होगी और 8 एक्सेप्टेबल होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट हो गई और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट हो गई। अंडरस्टैंड हो गया? अपर एक बार एक वुड पीस मुझे चाहिए सपोज 10 इंचेस, ठीक है? तो कस्टमर कह रहा है, अंडरस्टैंड, 10 इंचेस, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. तो Got it. 10 इंचेस चाहिए। अगर कस्टमर कहता है मुझे आप 9 दे देंगे तो एक्सेप्ट होगा और 11 भी दे देंगे तो एक्सेप्ट होगा। तो 9 उसकी लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट हो गई और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट हो गई उसकी 11, ठीक है ना? तो लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट के दरमियान वो एक्सेप्टेबल होंगी और अदरवाइज वो डिफेक्ट्स होंगे। लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट उसने बोला कि अगर 9 होगी, 9 से नीचे आएंगे तो सारे डिफेक्ट्स में होंगे। इस तरह 11 से ऊपर जो आएंगे वो सारे डिफेक्ट्स में होंगे। तो मेरी लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट थी 9, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट थी 11। सो ये एक्सेप्टेबल होंगी, अदरवाइज होंगे। तो वॉइस ऑफ कस्टमर क्या है? वॉइस ऑफ कस्टमर क्या है कि मुझे जो है विद इन वॉइस ऑफ कस्टमर एरो देख रहे हैं आप, एक्सेप्टेबल चीजें चाहिए मुझे। और वॉइस ऑफ प्रोसेस डिफेक्ट्स के साथ दे रहा है, उसमें क्या 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 मसले हैं देखें। वॉइस ऑफ प्रोसेस क्या है? प्रोसेस की आवाज, प्रोसेस क्या बना रहा है? प्रोसेस डिफेक्ट्स के साथ बना रहा है और कस्टमर कह रहा है नहीं मुझे डिफेक्ट नहीं चाहिए। वॉइस ऑफ प्रोसेस क्या है? इनएडिक्वेटेड प्रोसेस कैपेबिलिटी, प्रोसेस इज नॉट कैपेबल है, डिजाइन सही नहीं है या मार्जिन सही नहीं है। तो वॉइस ऑफ वॉइस, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेरिएशन कहाँ कहाँ से आ रही है। तो वॉइस ऑफ होना चाहिए
कि प्रोसेस के वेरिएशन कहाँ से आ रहे हैं। वॉइस ऑफ प्रोसेस मींस प्रोसेस के सारे डिफेक्ट्स और प्रोसेस की सारी डिटेल आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए। अगर आप और प्रिडिक्टेबल होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए प्रोसेस में वेरिएशन कहाँ से आ रही है। अगर से वो 10 मैंने आपको बताया था 10 इंचेस चाहिए मुझे, बार की लेंथ चाहिए 10 इंचेस, 12 मिल रहा है, इसका मतलब मुझे जो वो कटिंग जो हो रही है वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, या मटेरियल वो उसकी क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो प्रोसेस की जो वॉइस है, प्रोसेस में जो इश्यूज आ रहे हैं आपको प्रिडिक्टेबल होने चाहिए। और फिर जो है प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, उसको कंट्रोल करने के बाद आप वॉइस ऑफ कस्टमर को मीट कर सकते हैं। सो वॉइस ऑफ कस्टमर, वॉइस ऑफ प्रोसेस। वॉइस ऑफ प्रोसेस क्या है? प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, कहाँ से डिफेक्ट आ रहे हैं, किधर किधर से डिफेक्ट आ रहे हैं, हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। हम उसको कंट्रोल करते हैं तो फिर हम वॉइस ऑफ जो कस्टमर है, कस्टमर जो एक्सेप्टेबल कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। तो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना, प्रोसेस के डिफेक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना, वेरिएशन प्रोसेस को कंट्रोल करना, ये सब ठीक है। समझ आया? जी क्लियर? सर। यस सर। इसमें वही चीज जो पहले मैंने आपको बताया था कि आप प्रोसेस को स्टेबलाइज करें, रिड्यूस प्रोसेस को स्टेबल करें, डिफेक्ट्स को एलिमिनेट करें, तो आपका प्रोसेस का देखें किस तरह वो अंदर यूएसएल और एलएसएल के अंदर आ जाता है, यानी प्रोसेस कंट्रोल आ जाता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं आप यहाँ पे। जहां ये ब्रॉड होता जाएगा इसका मतलब वेरिएशन ज्यादा होगी, वेरिएशन ज्यादा होगी इसका मतलब कस्टमर के टारगेट को मीट करने के लिए आपका प्रोसेस कंट्रोल होना चाहिए, आपकी वेरिएशन कंट्रोल होनी चाहिए और प्रेडिक्टेबल नोन होनी चाहिए। आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे कंट्रोल करोगे? ऑलवेज रिमेंबर दिस इज वेरी वैलिड पॉइंट के प्रोसेस प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। प्रेडिक्टेबल मींस पता होना चाहिए कि प्रोसेस में कहां से आ रही है, क्या क्या वेरिएशन के सोर्सेस हैं, कहां कहां हम कंट्रोल कर सकते हैं। कितना टाइम रह गया हमारे पास? कितना टाइम रह गया? सर 1 घंटा है। 1 घंटा। इसको व्हाट इज इट? 42 मिनट्स हैं सर, व्हाट अभी इज भी इट? टाइम है सर, काफी टाइम। अच्छा अच्छा, नहीं टाइम मैं वही देखना चाह रहा हूँ कितना है, कितना कवर कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो इसकी फिलॉसफी को हम डीमैक कहते हैं। सिक्स सिग्मा। डीमैक मींस डिफाइन, एम फॉर मेजर, analyze, A for improve, I, C for control. R is replicate, but this is another factor, and we are not talking about these things. We are talking about
process. So define क्या है? One second. Give me a second. One second. Oh, sorry. One second. So problem solving strategy क्या होनी चाहिए? So explain ये क्या कि define, सबसे पहले गैप देखें, कस्टमर क्या चाह रहा है और परफॉर्मेंस जो हो रही है उसमें क्या डिफरेंस है। कस्टमर चाह रहा है डार्क रेड शर्ट, लेकिन आपका प्रोसेस शर्ट, तो गैप आ गया ना। कस्टमर नाइकी का चाह रहा है कि मुझे 8.5 साइज शूज चाहिए। Suppose the process cannot, that brand process cannot produce 8.5 size, only 8 sizes there. Shan masala, customer want whatever beef masala or whatever it may be. Second time ही वो लेने गया, उसका बिल्कुल ही चेंज था टेस्ट, या वो मिक्स हो गया, गैप आ गया। फार्मास्यूटिकल पैनाडोल बना रहे हैं, एस्प्रिन क्वांटिटी पहले लेते था, कंप्लेन लोगों की शुरू हो गई कि सर का दर्द ही सही नहीं हो रहा है, क्वांटिटी वेरी करने लगी, गैप आ गया। वुड प्लैंक, कस्टमर चाहता है कि उसको 100 फीट के वुड प्लैंक चाहिए, आप सिर्फ 90 के वुड प्लैंक दे सकते हैं, गैप। सो हर प्रोसेस में क्रिटिकल टू आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें क्रिटिकल टू कस्टमर हैं। कस्टमर चाहता है कि मेरी बैटरी जो है तकरीबन 2 साल चले, एक्साइट एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्साइट कह रहा है कि मैं गारंटी देता हूँ कि 2 साल चलेगी, लेकिन बैटरी खत्म हो जाती है 1.5 साल में, गैप आ गया। क्रिटिकल टू कस्टमर क्या है, क्रिटिकल टू सेटिस्फेक्शन क्या है, क्रिटिकल टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है? वो बैटरी चाहता है ऑटोमेटिक बैटरी 2 साल चले, आई पेड फॉर इट, बट बैटरी इज रनिंग फॉर 1.5 ईयर, सो गैप आ गया। तो क्या चाहिए कि आपको गैप आइडेंटिफाई करें, क्या आप जो बैटरी बना रहे हैं वो 2 साल की परफॉर्मेंस देनी चाहिए, लेकिन बैटरी परफॉर्मेंस दे रही है 1.5 साल की, तो गैप है। आइडेंटिफाई करें, उस गैप को एनालाइज करें, क्यों आ रहा है। डिफाइन हो गया कि भाई गैप आ गया, फिर उसको मेजर करें
एक मेजरमेंट सिस्टम आपका होना चाहिए जो देखे कि ये गैप क्यों आ रहा है। फिर एनालाइज करें, आइडेंटिफाई करें क्रिटिकल सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, कहाँ से वेरिएशन आ रही है। जैसे वेरिएशन बैटरीज जब मैन्युफैक्चर करते हैं, मे बी एसिड बात है, उनका वो कंसंट्रेशन सही नहीं है, मे बी चार्जिंग सिस्टम सही नहीं है, मे बी कई वेरिएशन हो सकती हैं। उसको एनालाइज करें, एनालाइज करने के बाद रिड्यूस एलिमिनेट सोर्स ऑफ वेरिएशन, उसको एलिमिनेट करें सोर्सेज ऑफ वेरिएशन को। जहां से वेरिएशन आ रही है उसको कंट्रोल करने के बाद, उसको इम्प्रूव करने के बाद कंट्रोल भी करना है। ये नहीं कि एक दफा कर दिया खत्म। लेकिन फिर उसको ये नहीं कि दोबारा कंप्लेन वही आ रही है। वो प्रोसेस इंप्लीमेंट करें, प्रोसेस कंट्रोल, एंड वेरीफाई करें उसको। सॉरी, रेप्लिकेट करें। रेप्लिकेट मीन्स उसको ट्राई आउट करें कि दोबारा तो क्रिएट नहीं हो रहा, वो इशू नहीं हो रहा। तो ये प्रोसेस है पूरे प्रोसेस कस्टमर नीड्स को मीट करने का। ठीक है, अंडरस्टैंड? Yes, sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. One second. There is 12 steps strategy based on the defined measure, analysis and improvement and control. Select the critical to customer satisfaction characteristics. पहले भी बात की थी, characteristics आप डिफाइन करें कि कस्टमर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहता है मेरे प्रोडक्ट में। फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहता है। जैसे एग्जांपल दोबारा शर्ट की मैंने दी थी कि डार्क रेड या प्लैंक्स वुड, जो लेंथ है उसकी, जो भी लेंथ हमने 100 फीट चाहिए था, 100 फीट ही चाहिए। और जैसे बैटरी है, बैटरी की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी बैटरी जो है 1.5 साल चलनी चाहिए, उस स्पार्क नहीं होना चाहिए, उसमें एलिमेंट्स पे करोजन जल्दी आ जाता, वो नहीं होना चाहिए। तो हर एक की पहले तो आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन की क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करें। उसको आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर क्या
फिर अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिफाइन करें कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स को अचीव करने के लिए मुझे अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या क्या, जो सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ वो सही है या नहीं सही है। कोई चीज वे कर रहे हैं आप, उसका वेइंग सिस्टम सही है या नहीं है। कोई चीज मेजर कर रहे हैं, उसका सिस्टम मेजरमेंट सही है या नहीं है। नंबर 4, इस्टेब्लिश बेसलाइन प्रोसेस कैपेबिलिटी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोसेस है, स्टेबिलिटी है या नहीं है कि हर वक्त वही चीज प्रोड्यूस करे। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स क्या चाहते हैं आप। सोर्सेज आइडेंटिफाई करें, जो मैंने पहले भी बताया था कि वेरिएशन की सोर्सेज आइडेंटिफाई करें। पोटेंशियल कॉजेज वेरिएशन के क्या क्या हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई करें, उसको स्क्रीन आउट करें और वेरिएबल के करें। हर ऑपरेशन की टॉलरेंसेस होनी चाहिए कि प्लस माइनस कितना मैं उसमें कर सकता हूं और उसमें इंप्रूवमेंट कैसे कर सकता हूं। वैलिडेट करें। डिटरमाइन फाइनल प्रोसेस कैपेबिलिटी, प्रोसेस कैपेबिलिटी को इंप्रूव एंड कंट्रोल करें और रेप्लिकेट करें। ये 12 स्टेप्स हैं आपके प्रोसेस को मीट करने के लिए। वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल। किसी भी प्रोसेस पे, एनी प्रोसेस, प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है। हर कोई भी प्रोसेस है उसका प्रोसेस फ्लो होता है। जैसे आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये स्प्रिंग बना रहे हैं, कॉइल स्प्रिंग बना रहे हैं, गाड़ियों में स्प्रिंग लगते हैं। उसका हर एक को समझना मुश्किल होगा, लेकिन ये जनरली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसमें क्या क्या है, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट हो कि हर प्रोसेस का प्रोसेस फ्लो होता है। जैसे यहाँ स्टील लेके, उसके रॉड लेके उसको कॉइलिंग करते हैं, कॉइल बनाते हैं, उसके स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग करते हैं ताकि उसके स्ट्रेस रिमूव हो जाए। उसका हॉट प्री सेटिंग, वार्म, ये सब जनरली सिर्फ ये पिक्चर देने का ये है कि हर इंडस्ट्री का अपना प्रोसेस फ्लो होता है और हर प्रोसेस को उनको वेरिएशन आइडेंटिफाई करें, पोटेंशियल कॉजेज आइडेंटिफाई करें, कहाँ से उनको रिमूव करने की कोशिश करें ताकि कस्टमर रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। हर प्रोसेस जब तक ऑर्गेनाइज करेंगे प्रोसेस, फिर आप उसमें पोटेंशियल कॉजेज वेरिएशन के कहाँ से एक्सपेक्टेशन क्या है आउट ऑफ द प्रोसेस, हर प्रोसेस के स्टेप को डिफाइन करेंगे, हर प्रोसेस की एक्सपेक्टेशन को डिफाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे, कॉजेज ऑफ वेरिएशन डिफाइन करेंगे, वैलिडेट करेंगे मेजरमेंट सिस्टम को, तो आप कस्टमर रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Got it. इसका अर्थ क्या है? जैसे one second, let me see this slide. One second. Sources. So बैलेंस ऑपरेशन क्या होता है? जो ऑपरेशन मैंने पहले बताया था कि आप बैलेंस ऑपरेशन क्या है, कॉस्ट मेंटेन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टाइम एंड डिलीवरी आपकी प्रॉपर है, क्वालिटी परफॉर्मेंस ठीक है, तो ये बैलेंस ऑपरेशन हो गया। जो भी चीज आपको फॉर एग्जांपल कॉस्टली, व्हेन यू आर कमिंग, ओके, नो प्रॉब्लम। सो बैलेंस ऑपरेशन जो भी होगा, बैलेंस ऑपरेशन अगर कॉस्टली है तो डेफिनेटली आप, इट्स नॉट वर्थ इट। अगर टाइम और डिलीवरी आप टाइम पे नहीं डिलीवर कर सकते, नो, नॉट वर्थ इट। क्वालिटी नहीं मेंटेन कर सकते, परफॉर्मेंस नहीं मेंटेन कर सकते, नॉट वर्थ इट। सो बैलेंस ऑपरेशन की ये फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। सवाल ये आ सकता है क्या फैक्टर्स हैं? These three factors must be balanced across the organization
across the entire business operation. This is the Six Sigma philosophy. Across the organization, across the entire business operation. Clear? Clear? No? Yes? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? इतना काफी है और आगे चलें। मैं ये नहीं चाहता कि एवरीथिंग डंप कर दें आप पे, आप लोगों को समझ ना आए। बाकी स्टूडेंट्स बता दें जिनके कोई अगर आगे पढ़ना है मजीद तो बता दो। तो वरना हम नेक्स्ट जी इट्स गोइंग वेल कह रहे हैं क्या कि कह आगे रहे हैं? प्रोसीड करें। मैसेज में आया है अच्छा, कि आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सही है, सही सही Continue. सही। So, पहले भी हमने डिफाइन किया था। सॉरी, माय गॉड। Oh, give me a second. I have to send one email, quick email. Give me a second only, please. Okay. ओके सर। Second. So focus हमें करना है कि X और Y प्रोसेस है। So प्रोसेस Y आउटपुट Y है, X इनपुट है। So इनपुट हम इनपुट को कंट्रोल करेंगे तो आउटपुट इनपुट्स जितने भी इनपुट्स हैं वो फोकस करना है आउटपुट के लिए। इनपुट इंडिपेंडेंट है, जाहिर है, जो भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन आउटपुट सारे डिपेंड किसके पे कर रहे हैं? इनपुट पे। जैसे आप कलर कर रहे हैं शर्ट पे, तो इनपुट क्या है? उसका कलर, उसका बाथ टेम्परेचर, उसका कितनी देर उसको डिप करना है। ये सारी चीजें इंडिपेंडेंट हैं जो एक्स हैं, और डिपेंडेंट क्या है? जो कलर मुझे चाहिए। तो डिपेंडेंट डिपेंड्स ऑन इनपुट, ठीक है। आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट। कॉजेज जो है वो इफेक्ट दे रहे हैं और कंट्रोल आप मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप इनपुट्स को कॉज फाइंड करेंगे कि क्या है, डिटरमाइन इनपुट माइंड डिटरमाइन करें, ताकि आपके
और उनको कंट्रोल करें ताकि आपको आउटपुट गारंटी करे जो आउटपुट रिक्वायर करता है कस्टमर को। सारे इनपुट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, आउटपुट को जब कस्टमर के हैंड में चला गया तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते। जब तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, जब तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वरना आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि डेफिनेटली आउटपुट मींस कस्टमर गॉट इट, आउटपुट उस प्रोडक्ट फाइनल हो गया। फाइनल होने के बाद तो कंट्रोल नहीं करेंगे ना आप, सारे जो इनपुट्स हैं, सारे जो इनपुट्स पैरामीटर्स हैं उनको कंट्रोल करेंगे, उनकी कॉजेस तलाश करेंगे, उनकी प्रोसेस कंट्रोल करेंगे, उनकी वेरिएबिलिटी कंट्रोल करेंगे, उनके जो जो इनपुट्स हैं सारी चीजें कंट्रोल करेंगे ताकि आपको बेटर आउटपुट मिल सके। बेटर आउटपुट उसी वक्त मिलेगा जब इनपुट्स कंट्रोल करेंगे। सारे इनपुट जितने गैदर करें, इनपुट एनालाइज करें, उसकी वेरिएशन और उसको करें। Mushtaq entered the waiting room. I don't know what is it. Okay? Understand? So हमने अभी आपको डेविएशन क्या है, एक आपने मीन, आपके हर चीज, हर प्रोसेस का मीन होता है। जितनी सेंट्रल, जैसे आपको 100 फीट की एक प्लैंक, वुड प्लैंक काटना है, कुमार कहता है मुझे 90 एक्सेप्टेबल है और 7 नीचे से 90 एक्सेप्ट, वो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अच्छा, हर चीज का मीन होता है, मीन से जितना ज्यादा आप दूर होंगे वो डेविएशन कहलाएगा। आप डेटा लेने के बाद मीन तो निकालना सबको आता होगा, यस या सर। नहीं? हाँ, मीन से जितने दूर होंगे वो डेविएशन कहलाएगा। ये ब्लैक लाइन जो नजर नीचे नजर आ रहे हैं वो मीन से जितने दूर होते जा रहे हैं तो वो डेविएशन कहलाएगा। ठीक है ना? यानी ये आप नीचे देख रहे हैं सर्कल बने हुए, ये और ब्लैक लाइन क्या है, मीन है उस ऑपरेशन का। ठीक है ना? तो मीन से जितने दूर पार्ट होंगे प्लस साइड पे या माइनस साइड पे, तो वो डिविएशन, क्योंकि एक्चुअली तो हम हर पार्ट मीन पे कोशिश करते हैं कि मीन के अराउंड ही रहें, मीन के अराउंड रहें हम। ठीक है ना? मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बता देता हूं आपको, आता है सबको? यस सर, अच्छा, आता तो है। मीन अब से, दोहरा दें, बाकियों को जिनको नहीं आता उनको पता। अच्छा, तो मीन के गिर्द हमें जितनी दूर होंगे हम उससे डेविएट करते जाएंगे। ठीक है ना? मैं बताऊंगा आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको आगे जाके। या देखिए, मीन लाइन हमारी क्या है, ये मीन लाइन आपको नजर आ रही है बीच में, तो उसके ये मेजर किया हमने 50 मिलीमीटर और 90 मिलीमीटर के दरमियान। इसका मीन कैसे निकालेंगे? 50 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2। 50 और 90 कितना हो गया? 140? 190। नहीं नहीं, 50 और प्लस 90 140 हो गया यार। 140 के आप डिवाइडेड बाय मेजर किए, उसका डिवाइड कर दें तो आपको मीन निकल आएगा। ठीक है ना?
जितने पार्ट मेजर किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी पार्ट हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको मीन, ठीक है ना, सारे को ऐड कर लें, जो जो मेजरमेंट आई है उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ पार्ट से, तो मीन आ जाता है। और आगे एग्जांपल मैं बताऊंगा मजीद। तो सिर्फ देखने का मकसद ये है कि ये जो पार्ट मेजर कर रहे हैं आप, मीन लाइन मैं आगे चल के बताऊंगा, आपको एग्जांपल दूंगा। मीन लाइन है उससे ऊपर नीचे हैं सारे, तो ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी है नीचे भी है। तो जितने ज्यादा मीन से दूर होंगे पार्ट वो डेविएशन कहलाएगी। ठीक है ना, इसको मजीद पढ़ेंगे हम, लेकिन सिर्फ ये कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि मीन से जितनी दूर पार्ट होंगे वो डेविएशन कहलाएगी। ओके, अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड और नो? Yes, sir. कितना टाइम रह गया हमारे पास? सर 15 मिनट्स रह गए। 15 मिनट्स। अच्छा, तो इस पे मैं फिलहाल यहाँ पे खत्म करता हूँ। कोई क्वेश्चन कोई फीडबैक हो तो बेहतर होगा। और नेक्स्ट सेशन जरा सा हम लंबा करना चाहेंगे क्योंकि उसमें सवाल और जवाब भी होंगे। तो थोड़ा सा अगर आप लोग टाइम ज्यादा रखें नेक्स्ट वीक का, ठीक है तो और सर, अगर टाइम बढ़ा और देंगे। अगर टीम चाहेगी तो हम एक ऐसा कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक रखने के बाद एक और वीक कर लें। ये ज्यादा इट बेहतर रहेगा डिपेंड्स, सर, लेकिन एक और दिन बढ़ा दें ये अच्छा होगा। हाँ, लेकिन ये सोहेल साहब को आप अपनी रिक्वेस्ट भेज दें, मैं उनसे बात कर लूंगा। और लेकिन उसमें ये करें कि अटेंडेंस कम नहीं होनी चाहिए। पिछली दफा 48 थे, इस दफा शायद 25-30 लोग हैं। ये क्या रीजन है? सर अटेंडेंस वेरी कर रही है, किसी का डिस्कनेक्ट हो जाता है, दोबारा कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए वो अटेंडेंस वेरी मिल जाती है। ये अच्छा है। अच्छा, हाँ कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा जी लोग आए। जी जी और जी हम एक दिन और बढ़ा लेंगे सोहेल साहब से पूछ के, ठीक है ना? जी सर। अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे, मैं जबरदस्ती नहीं थोपना चाहता आप लोगों पे। आई डोंट वांट टू। नहीं सर, हमारी तरफ से तो आप रिकमेंडेशन है, लेकिन आपकी अवेलेबिलिटी का वो है कि आपको ज्यादा बोल देना। No, I will manage Saturdays. I will manage, but बीच में मीटिंग हो जाती है, लेकिन I will manage, no problem. थैंक So यू सर। तो you guys have to decide whether you want 1 week more or no. Then we, क्योंकि I my sometimes I attended so many meetings. Sometimes some meetings I go, लगता है कि वो ऊपर से गुजर रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो क्योंकि समझाने वाले पे ये होना चाहिए कि वो कंसेप्ट को क्लियर करे, और कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बेकार है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है ना? टेक अवे होना चाहिए किसी ट्रेनिंग से। टेक अवे नहीं है तो फिर यूजलेस हो जाता है। तो दिस इज नहीं माय देखो, ऑप्शन। बहुत सिंपल ओके, है और बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। इंशाल्लाह हम रिक्वेस्ट करेंगे सर से कि एक दिन और बढ़ा दें। हाँ आप करें, फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं, ठीक है? जी जी सर। ओके, थैंक्स फॉर एवरीबॉडी। ओके। थैंक यू एवरीवन।